Hello everyone, in today's video we will discuss about the NCERT questions of trigonometry. So it is exercise 3.3 in the new edition and exercise 3.4 in the old edition. And we will start from question number 5, that is third part, and the first and second part is already we have solved it in my previous videos. If you haven't seen them yet, go and see in the pop-up bar which is showing above. So let us start. Before starting, I would like to tell you that these are the basic formulas which we will use to solve these questions. But this formula is not being used in the two proof question. So let us start from the third part. Okay, so this is our question. Let us solve the left hand side. See, it is being here, you can see that we are having secant theta and cosecant theta. Okay? And we are not having tan square or cot square that we can convert it into this one formula. Fine. So what we can do is convert these tan theta and cot theta into sine and cos values. Tan theta is equal to sine over cos and cot theta is equal to cos over sine. Okay, so convert it. Tan theta is equal to sine theta over cos theta over 1 minus cot की जगह cos theta over sine theta. I hope this is clear. And अब यहाँ पे cot theta is cos theta over sine theta over 1 minus sine theta over cos theta. So I have used these two formulas, tan की value और cot की value. ठीक है? Now let us further solve this. Sin theta over cos theta as it is in the numerator form. Denominator में आ गया, आप इसका LCM ले लो इस value का. It will be sin theta because आप 1 से multiply कर रहे हो minus cos theta over sin theta plus cos theta over sin theta divided by cos theta minus sin theta over cos theta. Further solve it with the help of divisibility rule. So it will be sin theta over cos theta divided by sin theta minus cos theta over sin theta. ये मैं as it is ही लिख रही हूँ, ठीक है? अभी हम इसे further आगे solve करेंगे. Divided by cos theta minus sin theta over cos theta. अब जब divisible आप जब इसको आगे solve करोगे, so it will be sin theta over cos theta और यहाँ पे आप क्या कर दो multiply, तो reciprocal हो गया, ठीक है? sin theta minus cos theta plus cos theta over sin theta into cos theta over cos minus sin theta. Now see, you have to multiply them. ठीक है? sin into sin will be sin square theta over cos लिख लो बाहर, अंदर क्या आ गया sin theta minus cos theta. ठीक है? plus cos into cos will be cos square theta over sin आ गया हमारा बाहर, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक्चुअली, तो यहाँ क्या आ गया cos theta minus sin theta. Now see, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है, so what you do, LCM लोगे, but for taking the LCM आप इन दोनों को, ये sin theta minus cos theta और ये cos theta minus sin theta, this must be equal. तो अब इनको equal कैसे करोगे? अभी साइंस की प्रॉब्लम आ रही है. अगर आपका यहाँ cos माइनस में होता और sin प्लस में होता तो आपकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल हो जानी थी. ठीक है? तो आप कैसे कर सकते हो? मान लो आपने माइनस बाहर लिख दिया तो अंदर साइन क्या हो जाती है माइनस के टाइम चेंज, तो ये ऐसे हो गया. फाइन. तो ये वाली वैल्यू और ये वाली, दिस वन वैल्यू एंड दिस वन वैल्यू हो गई ना इक्वल. सो वी विल डू विद दिस. आपने किया साइन चेंज, ठीक है? आप ऐसे कर सकते हो, बिकॉज अगर सपोज ये माइनस आपका हट जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाए, तो ये माइनस यहाँ जाके इसके साथ प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा माइनस, तो हमारे पास पहले वाली सिचुएशन ही आ जाएगी.
So when you are taking minus बाहर की साइड, then you have to change the signs inwards. अब now further solve it. Sin square theta ऊपर over cos sin theta minus cos theta, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे प्लस है, देखो प्लस माइनस इज माइनस, सो वी विल रिप्लेस दिस प्लस विद माइनस, ठीक है, जो हमने यहाँ पर ये वाला माइनस लिखा है ये आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा, और ये आपकी जो ऑल्टर्ड वैल्यूज हैं वो हमने लिख दी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम विल बी कॉस साइन, कॉस एंड साइन है ना, मल्टीप्लाई हो गए, साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा आपका कॉमन आ गया, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी व्हेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई ये वैल्यूज तो सेम ही है, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएंगी, कॉस भी आपके पास है मतलब ये कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचा साइन, सो व्हाट यू विल डू, साइन के साथ क्या बन गया आपका साइन स्क्वायर इंटू साइन विल बी साइन क्यूब माइनस, वैसे अब कॉस स्क्वायर है, देखो कॉस स्क्वायर को ये है आपके पास कॉस स्क्वायर वैल्यू है ऊपर न्यूमरेटर में, साइन थीटा आपके पास है मतलब साइन विद साइन आपका एक्चुअल में क्या हो जाएगा कैंसिल इसके साथ ऐसे करके, है ना, और माइनस कॉस की वैल्यू ये भी इसके साथ ऐसे करके कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या कॉस, तो वो आपके इस कॉस की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा कॉस क्यूब, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। नाउ लेट अस फर्दर डू This was only for understanding, ठीक है। Now here will be cos cube, ठीक है। अब now we have an identity that a cube minus b cube is equal to a minus b and a square plus b square plus ab. You have done this identity in 9th class, ठीक है, so this is the same identity, so the next is apply here, ठीक है, your answer will be sin theta minus cos theta and sin square theta plus cos square theta plus sin cos, ठीक है, upon as it is cos theta sin theta and sin theta minus cos theta. अब देखो आपकी ये sin theta minus cos theta is being cancelled, this whole cancelled with this, ठीक है। Now let us do, ऊपर क्या है आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, ठीक है, ये वाली वैल्यू इन दिस वन वैल्यू, प्लस पीछे क्या बचा साइन कॉस, नीचे क्या है कॉस थीटा साइन थीटा। अब ऐसे मत कर देना कि आप कॉस थीटा और साइन थीटा कैंसिल कर दो बिकॉज यू आर हैविंग 1 ओवर हियर, है ना, सो आप ऐसे करो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को सेपरेट कर दो, मतलब इट विल बी 1 ओवर cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा ओवर अगेन नीचे तो वही रह गया sin थीटा cos थीटा। देखो हाउ आई हैव डन, मान लो आप इनको अलग अलग करके लिख लो, ठीक है, तो भी अगर आप एलसीएम लोगे और आंसर विल भी ऊपर न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा और नीचे sin थीटा cos थीटा, तो हम इसको सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं, तो योर आंसर विल बी 1 ओवर कॉस साइन, देखो 1 ओवर कॉस क्या होता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये इतने की वैल्यू, 1 ओवर कॉस इज सीकेंड थीटा एंड 1 ओवर साइन थीटा विल बी कोसेकेंड थीटा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कोसेकेंड थीटा सीकेंड थीटा प्लस ये कैंसिल हो गया 1, ठीक है, सो वी हैव टू प्रूव 1 प्लस सीकेंड थीटा कॉस थीटा, दिस इज व्हाट वी गॉट, और यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो ना, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, बस प्लेसेस चेंज कर दी, सो दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved. So this was all about this third question, third part. So this question is actually very important, so I hope you understood. Thank you.